ہر گھر میں ایک بیٹی ضرور ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جب بیٹی روتی ہے تو دل کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ توبہ کا خیال خوش بختی ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ انسان دنیا کے کسی کام سے اتنا نہیں تھکتا جتنا رویوں اور احساس کی شدت سے تھک جاتا ہے۔ لمبی لمبی امیدیں باندھنے سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی خوشی کو دور کرتی ہیں۔ شیر اور ہرن کے درمیان ہونے والی دوڑ میں کئی بار ہرن جیت جاتا ہے، کیونکہ شیر کھانے کے لیے اور ہرن زندگی کے لیے بھاگتا ہے۔ پیدائش کا استقبال موت سے، جوانی کو بڑھاپے سے، اور قسمت کو بدقسمتی سے، اس طرح اس دنیا میں ہر چیز لمحاتی ہے۔ کسی انسان کی کمزوری اس کی نرمی کو ظاہر نہیں کرتی، کیونکہ پانی سے نرم کوئی چیز نہیں، لیکن پانی کی طاقت چٹانوں کو بھی ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ نہ دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں محبت ختم ہو جاتی ہے۔ اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو ہمیشہ عمدہ رکھو، کیونکہ اس سے خون اور خاندان کی پہچان ہوتی ہے۔ بیدار کر دینے والا غم غافل کر دینے والی خوشی سے بہتر ہے۔ جس آدمی کی زبان خراب ہو جاتی ہے اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے۔ آگے بڑھنے والا کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، لیکن دوسروں کو نقصان پہنچانے والا کبھی ترقی نہیں کرتا۔ مشکل کام اس وقت تک خطرناک ہوتا ہے جب اسے آسان سمجھا جائے۔ علم پیسے سے بہتر ہے، کیونکہ آپ نے پیسے کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، لیکن علم آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ زندگی میں ایک بات یاد رکھنا، انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے۔ جو انسان دوسروں کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، حقیقت میں وہ اپنے کردار کی برائیاں دوسرے میں تلاش کرتا ہے۔ کسی کے ماضی پر اس کی تذلیل کرنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ کہیں اس کا ماضی تمہارا مستقبل نہ بن جائے۔ غلطی نکالنا تو بہت آسان ہے، لیکن کسی غلط کو ٹھیک کرنا نئی تعمیر سے زیادہ مشکل ہے۔ کسی کی اصلاح کرنے کے لیے بھی حکمت و دانائی چاہیے۔ جب کبھی تمہیں اپنے رزق میں کمی نظر آنے لگے تو کچھ مال اللہ کو دے کر اللہ کے ساتھ تجارت کر لیا کرو۔ کوئی سفر لا حاصل نہیں ہوتا، منزل نہ بھی ملے تو راستے بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ سو زندگی میں کبھی بھی مشکلوں سے گھبرا کر رک نہ جانا۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے بن جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کرتی ہیں۔ زندگی کے جس مقام پر ہو
उसे तस्लीम कर लो और ये भी तस्लीम कर लो कि यहाँ तुम हमेशा नहीं रहोगे। जो कौमें अपनी तकदीर पर ईमान नहीं रखती वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकती। अगर तुम्हें दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हासिल करनी है तो खुद ही को बुलंद करो। हकीकत को जानने के लिए इंसान को अपनी ज़ात को पहचानना ज़रूरी है। इंसान की तकदीर उसकी खुदी और इरादे के मुताबिक बननी चाहिए। इल्म का मकसद सिर्फ मालूमात का हासिल करना नहीं बल्कि दिल की सफाई और रूह की इस्लाह है। अल्लाह की याद में सुकून और दिल की राहत है। उसके करीब जाने का वाहिद रास्ता उसका जिक्र है। अल्लाह का कुर्ब इंसान को हकीकत का शऊर देता है और हर रुकावट को अबूर करने की ताकत बख्शता है। जब तुम अल्लाह के करीब आते हो तुम्हारी जिंदगी में सुकून और इत्मीनान आ जाता है। अल्लाह की रज़ा की कोशिश करना इंसान को उसकी रहमत के दरवाज़ों तक पहुंचा देती है। अल्लाह की तरफ कदम बढ़ाओ वो तुम्हें हर रास्ते की हिदायत देगा। जो अल्लाह के साथ ताल्लुक कायम करता है उसकी जिंदगी में कभी भी मायूसी नहीं आती। अल्लाह की कुर्बत में इंसान को वो सुकून मिलता है जो दुनिया के किसी माल और दौलत में नहीं। अल्लाह की रज़ा की कोशिश से इंसान के दिल में सुकून और इत्मीनान आता है। अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए दिल में खलूस और पुख्ता इरादा ज़रूरी है। अल्लाह के करीब होने का रास्ता सच्ची तौबा, मोहब्बत और उसकी रज़ा के तलब में है। जो शख्स अपनी हकीकत को पहचान ले वो दुनिया व आखिरत की कामयाबी हासिल कर लेता है। नफ्स की इस्लाह का सबसे बेहतर तरीका उसके साथ मुसलसल जहाद करना है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका नफ्स है जो उसे गुमराही की तरफ ले जाता है। जिसको तुमसे सच्ची मोहब्बत होगी वो तुमको फजूल और नाजायज कामों से रोकेगा। पानी हद से बढ़ जाए तो तूफान बन जाता है। इंसान हद से बढ़ जाए तो शैतान बन जाता है। किसी दूसरे के गिरने पर खुशी मत किया करें। क्या मालूम कि कल को तुम्हारे साथ क्या हो जाए। जो शख्स नेक सलूक करने से दुरुस्त ना हो वो बदसलूकी से दुरुस्त हो जाता है। तीन इंसान तीन चीजों से महरूम रहेंगे: गुस्से वाला सही फैसले से, झूठा इंसान इज्जत से और जल्दबाजी करने वाला कामयाबी से। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी कोई भी दुआ रद्द ना हो तो अपने दिन का आगाज सदका देने से शुरू किया करो। इल्म का मकसद सिर्फ दुनियावी फायदे का हसूल नहीं बल्कि इंसान की रूहानियत की तकमील भी है।
किसी भी कौम का ज़वाल उसके मुआशरती और इखलाकी इक़्तिदार की कमी की वजह से होता है। अक्ल का इस्तेमाल इंसान को हर किस्म के फरेब से बचाता है और सच्चाई तक पहुंचाता है। फ़लसफ़ा की सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि ये इंसान के दिल व दिमाग को खोलता है। जो शख्स इल्म में इजाफा करता है वो ना सिर्फ अपने आप को बल्कि अपने मुआशरती हलके को भी फ़ायदा पहुंचाता है। इंसान का सबसे अहम फ़राइज़ा ये है कि वो अपने अक्ल और इल्म का इस्तेमाल सही तरीके से करे। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका खौफ और शक है। जब वो उन पर काबू पाता है तो वो कामयाब होता है। अल्लाह की नाराज़गी का सबसे बड़ा सबब गुनाहों का अर्तकाब है। जब हम अल्लाह के अहकाम को नज़रअंदाज करते हैं और गुनाह करते हैं तो अल्लाह की नाराज़गी का सामना करना पड़ता है। अल्लाह की इबादत खसूसन नमाज को तर्क करना भी अल्लाह की नाराज़गी की वजह बन सकता है। नमाज दीन का सुतून है और अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो अल्लाह की रज़ा से दूर हो जाते हैं। झूठ बोलना और मुनाफ़िकत अल्लाह को सख्त नापसंद है। जब इंसान सच्चाई से मुंह मोड़कर झूठ बोलता है या दूसरों से दोगला रवैया रखता है तो अल्लाह की नाराज़गी का सामना करता है। वालिदैन का हक अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अदा ना करना भी अल्लाह की नाराज़गी का सबब बन सकता है। कुरान और हदीस में वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने का बार बार हुक्म दिया गया है। इंसानों या जानवरों के साथ बदसलूकी और जुल्म करना भी अल्लाह की नाराज़गी का सबब है। अल्लाह के नज़दीक इंसानों के हकूक़ का एहतराम और इंसाफ इंतहाई अहम है।